Hello students, a very good morning to you all. My name is Ritik Jain and today we will start with Mathematics chapter 4, which is basic geometrical ideas, and study about different types of geometries and shapes. So what is geometry? Geometry is study of shapes. And what is shape? Shape is any object which you see around yourself. Your cricket bat, your cricket ball, your lunch box, your notebook. Everything is a shape. तो सर ये वर्ड ज्योमेट्री कहाँ से आया? तो ज्योमेट्री इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड ज्योमेट्रॉन and it is composed of two words, geo which means earth and metron which means measurement. So combined it is measurement of earth. और इस चैप्टर में भी हम measurement of different shapes ही पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम तीन बहुत बेसिक शेप्स कवर करेंगे, पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन. तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक, पॉइंट. So what is a point? A point is a tiny dot which you draw on paper with your pen or pencil, just like this. So this will give me idea of a point. Now how to denote a point? You can use any English alphabet to denote a point. If I write A here, then this will be called my point A. And if I draw another point and name them as B, then this will be my point B. One thing to keep in mind, your pencil or pen should be as sharp as possible. Otherwise, point will not be thinner. We will just discuss this in the next slides. Now, how to draw a point? You can use your compass, your pencil or pen. Also, you can use your needle to draw a point. Okay. Now, here you can see I have drawn 3 points and named them with different English alphabets. So, I will call them as point A, point B and point C. So similarly, you can mark multiple points on a paper and name them using different English alphabets. तो अभी मैंने कहा था कि आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है आपका पॉइंट थोड़ा सा मोटा बने, कुछ ऐसा. तो वहाँ मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊँगा कि सर आप इस पॉइंट को पॉइंट आउट करने का ट्राई कर रहे हो, या फिर आप इस दूसरे पॉइंट को, या फिर आप इस तीसरे पॉइंट को पॉइंट आउट करने का ट्राई कर रहे हो. मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए आपका पेन या पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए. ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं. विद द शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क 4 पॉइंट्स ऑन अ पेपर एंड नेम देम बाय द लेटर्स A, C, P and H. Okay, so what we have to do? First we have to mark 4 points and name them by these letters. So this can be my point A, this can be my point C, this can be my point P and this can be my point H. Okay, point A, point C, point P and point H. Now try to name these points in different ways. Okay, so again I will mark 4 points and name them in different manner. This can be point P, this can be point A, this can be point H and this can be point C. So there are many different ways by which you can mark 4 points on a paper. So let's move on to the next topic, which is a line segment. If you take a sheet of paper and fold it in any way like this. Now if you unfold it, you will see a crease or a line like this here. This will give you an idea of a line segment. It has two endpoints, one above the paper and one below the paper. Similarly, here also, this was my sheet of paper. This will be called my line segment. It has two endpoints which I have marked as point A and point B. Okay, so there are many different objects around you in which you can see a line segment. आप एक बॉक्स में भी लाइन सेगमेंट देख सकते हैं, जैसे कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है. इनफैक्ट ये छोटी सी भी एक लाइन सेगमेंट है. एक ट्यूबलाइट में भी आपको एक लाइन सेगमेंट दिखेगी. इनफैक्ट एक पोस्ट कार्ड में आपको 4 लाइन सेगमेंट्स दिख सकती हैं, 1, 2, 3 and 4. So there are many different objects in which you can see a line segment. तो सर डेफिनेशन क्या है? ये तो एग्जाम्पल्स हैं. अब डेफिनेशन कुछ ऐसी है, द शॉर्टेस्ट जॉइन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स बनाऊँ और उनकी नेमिंग करूँ पॉइंट A और पॉइंट B, और अगर मैं आपको कहूँ इनको ज्वाइन करने के लिए, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे,
कुछ स्टूडेंट्स इनको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट इन दोनों को ही मैं लाइन सेगमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है द शॉर्टेस्ट जॉइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मेरी लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, इसको मैं मेरी लाइन सेगमेंट कहूँगा। और सर इसको डिनोट कैसे करेंगे? आपको दोनों एंड पॉइंट्स लिखने हैं ए बी, और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बना देनी है, इसको मैं कहूँगा मेरी लाइन सेगमेंट ए बी। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, मैं इसको लाइन सेगमेंट बी ए भी बोल सकता हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर, इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। तो आपको यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट दिख रही होंगी, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट ए सी। तो पहली लाइन सेगमेंट हुई मेरी ए बी, इसको मैं लिखूँगा ए बी, या फिर मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। मेरी दूसरी लाइन सेगमेंट हुई ए सी, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? करेक्ट, सी ए। तो ये मेरी दो लाइन सेगमेंट्स हुई ए बी एंड ए सी। इज ए द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट? यस, ए इज द एंड पॉइंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट। ए मेरी दोनों लाइन सेगमेंट्स का एंड पॉइंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अ लाइन। तो लाइन कुछ भी नहीं, बिल्कुल लाइन सेगमेंट की तरह है। एक छोटा सा डिफरेंस है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, अगर मैं इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं और दूसरे पॉइंट को दूसरी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूं, तो वो मुझे एक लाइन देती है। तो सर फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क इतना सा है कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया पॉइंट ए को, और पॉइंट बी को दूसरी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे ये लाइन ए बी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब लाइन को कैसे डिनोट करेंगे? अगर आपके पास एक लाइन है जिस पे आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी, सिमिलरली जैसे ही हमने लाइन सेगमेंट को किया था उसी तरह हम लाइन को भी डिनोट करेंगे। डिफरेंस इतना सा है, इस बार हम एक डबल साइडेड एरो का यूज़ लेंगे इंस्टेड ऑफ एक छोटी सी लाइन। हम एक डबल साइडेड एरो का यूज़ लेंगे, बिल्कुल सही। इसको मैं लाइन बी ए भी लिख सकता हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। लाइन सेगमेंट की तरह ही लाइन को भी दो पॉइंट से डिनोट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है पी क्यू, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा? करेक्ट, लाइन पी क्यू, या फिर मैं इसको लाइन क्यू पी भी बोल सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि लाइन को मैं एक स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ इसने लाइन पी क्यू को स्मॉल लेटर एम से डिनोट किया है। अगर मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं एक साथ, अगर मेरे पास मल्टीपल लाइंस हैं, तो मैं उनको पॉइंट्स देने की बजाय मैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकता हूँ, जैसे कि लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। So these three will be my line segments, line L, line M and line N. So this was all about line. So we have covered three very basic shapes in this video: a point, line segment and line. And in the further videos we will cover more shapes. Till then, goodbye.